purpose of our ministry is to equip, to encourage, to build and to share the gospel around the world. As Jesus said in Matthew 28, He said, go into all the world and share the gospel. Friends, beloved, it is the very heart of God to reach out to the millions of the dying people around the world, the hungry and the broken. And we are right here to equip them with the word of God. After a new beginning of the El Shaddai ministry, and the Almighty God who called them, lead and to guide, and from like a seemingly mustard seed ministry that may grow into the plant and to the tree and the forest. John 16:33. यूहन्ना 16:33 यूहन्ना 16:33 These things I have spoken unto you. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं. All the things that are written in the Word of God has been spoken to you for one reason. जो जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई वो केवल एक कारणवश आपको बताई गई है. Everything that is written in the Bible is for one reason. हर चीज जो बाइबल में लिखी गई है वो एक कारणवश है. Every word that is written there is written for one reason. हर एक वचन जो वहाँ पर लिखा गया है, हर एक शब्द जो लिखा गया है वो एक कारणवश है. That in me, Jesus says, you might have shalom. कि यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में तुम्हें शांति प्राप्त हो. Amen. Everything has been written so that you will be at peace. हर चीज इसलिए लिखी गई है ताकि आप लोग शांति में रहें. Because He knows very well that you are going to have trouble like everybody else. क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों के प्रकार आपके ऊपर भी तकलीफें आएंगी. Because trouble is a part of the world. क्योंकि तकलीफ जो है, परेशानी जो है संसार का एक भाग है. Job 14 verse 1. अय्यूब 14:1 What is Job saying here? यहाँ पर अय्यूब कह क्या रहा है? Man that is born, or a woman that is born of a woman is of few days, like what Pastor Syed said, of few days, and full of trouble. मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है या स्त्री से उत्पन्न होती है वो थोड़े दिनों की है और थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है. And it's so important for us to understand that if you are in the world, you will see trouble. और हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप संसार में हो तो आपके ऊपर परेशानी आएगी, आप उन्हें जरूर देखोगे. That's why Jesus says in John 16:33 again. इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में कहते हैं एक बार फिर, These things I've spoken unto you for one reason. मैंने तुमसे ये इसलिए कही है कि मैं तुम्हें In the world you shall have trouble. संसार में तुम्हें क्लेश होता है. You are in the family, you will have trouble. अगर आप परिवार में हो तो वहाँ पर भी संकटें आएंगी. You will be in your office, you will see trouble. आप अपने दफ्तर में होंगे, वहाँ पर परेशानियाँ आएंगी. Even if you are in the church, you may have trouble. और हो सकता है कि कलीसिया में होते हुए भी आपको परेशानियों का सामना करना So पड़े. there is something that is a part of being
in the world is trouble. तो इसका मतलब ये है कि संसार का एक भाग होने का मतलब है कि परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। So he is saying to you for one reason that you have peace so that you can be cheerful. तो इसी कारणवश मसीह कहते हैं कि आपके अंदर शांति आए ताकि आप लोग खुश रहो। The reason is that in the midst of trouble you have cheer, you can cheer yourself and cheer others. तो ऐसा है कि वो परेशानी के बीचों बीच आप न सिर्फ अपने आप को खुश रख सकते हो परंतु दूसरों को भी खुशी बांट सकते हो। Because the moment you have Jesus inside of you, you have overcome the world. क्योंकि जब आपके अंदर यीशु मसीह होता है तब आप इस संसार के ऊपर प्रबल हो जाते हो। Amen? Amen. When you have overcome the world, then your peace that others see will make them also to want what you have. ऐसा है कि जब आप एक बार इस संसार के ऊपर प्रबल हो जाते हो तो जो शांति आपके अंदर नजर आती है संसार उसे देख सकता है, आप उसे संसार में बांट सकते हो। And it's very very important for you to carry that peace wherever you go. और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं उस शांति को अपने साथ ले जाएं। Because Jesus is not only with you, He is in you. यीशु न सिर्फ आपके साथ है परंतु आपके अंदर है। That if you have accepted Jesus, Jesus is not only a tag. अगर आपने यीशु मसीह को चुन लिया है तो सिर्फ एक नाम या एक मुहर ही नहीं है। How many of you understand what I'm saying? कितने लोग ये समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? It is not in word but in demonstration. ये केवल शब्दों में नहीं है परंतु आप जो करते हैं उसमें ये नजर आता है। So it is very very important that if you talk about Jesus and you don't have the peace, you don't have Jesus. ऐसा है कि अगर आप ये कहते हो कि आप यीशु की बात करते हो मगर आपके अंदर शांति नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास यीशु नहीं है। Because Jesus' name is the Prince of Peace. क्योंकि यीशु का नाम ही है अमन का यानी शांति का राजकुमार। If you have the Prince, you have the peace. अगर आपके पास वो राजकुमार है तो आपके पास शांति होगी होगी। Amen? Amen. So one thing that you have to accept it wherever you are, that you will see some kind of trouble. तो आपको एक बात को ग्रहण कर लेना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर आपका परेशानी से सामना जरूर होगा। I'm not saying you be the reason of the trouble, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस परेशानी का कारण हो, but you be the reason to bring peace in the trouble. लेकिन आप वो कारण होगे जो उस परेशानी के बीच में शांति लाएगा। Because in the trouble, when you are the one that is there, Jesus, Jehovah Shalom is manifesting His peace on you. ऐसा होता है कि जिस परेशानी के बीचों बीच में आप होते हो तो वहाँ पर यहोवा शैलोम जो है वो अपने आप को प्रकट करता है। And it's very very important for you to understand that in the midst of all that is happening, God is looking for the peace that He can manifest in the midst of all the problems. और ऐसा है कि ये बहुत जरूरी आपके लिए जानना कि ये सारी की सारी परेशानियों के बीच में परमेश्वर इस चीज की तलाश में है कि वो आपके द्वारा उस शांति को प्रकट करे। When Gideon was having trouble for 7 years, that he was under the hands of the enemy. और गिदोन जो था उसे बड़ी परेशानी थी जब 7 वर्षों तक वो शत्रु के हाथों में पड़ा हुआ था। I don't know how many years you are in captivity. हमें नहीं पता कि कितने सालों से आप बंदीगृह में फंसे हुए हो। But you are not supposed to be in captivity because whatever the enemy's plans is to captivate you, it is the God's plan that you bring him under captivity. ऐसा है कि मैं नहीं जानता परंतु शैतान की ये योजना जरूर है कि वो आपको बंदीगृह में रखे, लेकिन परमेश्वर की ये योजना है कि आप शैतान को अपनी बंदीगृह में रखें। Amen? Amen. Because Jesus did that, and that's what He is expecting. The same thing. If you maintain your peace, you can do that. तो यीशु ने भी यही किया। अगर आप अपनी शांति को बनाए रखते हो तो आप भी निश्चित रूप से वो कर सकते हो। And it's in Judges chapter 6 verse 12. न्याय के 6 अध्याय 12वें वचन में है, When everything that is written, it is written there for our learning. वहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारे सीख के लिए, हमारे शिक्षा के लिए लिखा गया है। That is Romans 15 verse 4. वो रोमियो 15 का 4 है। So if you are coming to church, you are expecting to be learning, and if not, you are not doing anything. तो जब आप कलीसिया आते हो, चर्च आते हो तो इसका मतलब है कि आपको सीखना है। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। Because if you are learning, then you will be carrying what the anointing is bringing in your life, that in Christ you will have peace. अगर आप सीख रहे हो तो आप फिर उस अभिषेक को अपने अंदर उतरने दोगे जिसके द्वारा आपको शांति मिलती है। What is Christ means? Christ means the anointed one.
क्रिस्तुस का मतलब है कि वो जिसे अभिषेक किया गया है। That's why he says, in the world you will have trouble, but in Christ, in me, you will have peace. तो इसीलिए यीशु कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, परंतु मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। Some people come to church and the anointing is there, but they are so much somewhere else that they cannot capture the anointing. ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है कलीसिया आते हैं जहाँ पर अभिषेक ही अभिषेक है, लेकिन उनका मन कहीं और होता है, इसीलिए उस अभिषेक को वो पकड़ नहीं सकते। Anointing is not only captured, the anointing is taught. You have to learn from it. ऐसा है कि अभिषेक को न सिर्फ आपको ग्रहण करना है, पकड़ना है, परंतु अभिषेक के द्वारा आपको सीखना भी है। If you know, there are many meetings that I've seen people going, I feel the anointing. और ऐसा है कि कई सभाओं में हम गए हैं, वहाँ पर हमने देखा है लोग ये कहते हैं कि मुझे अभिषेक का एहसास हो रहा है। They fall down, they do all the kind of things that happen, and it's beautiful. और ऐसा होता है कि वो गिर पड़ते हैं और बहुत कुछ होता है उनके ऊपर, और ये देखना बहुत अच्छा लगता है। It doesn't matter whether you fall under the anointing, but when you get up under the anointing, you are changed. ऐसा होता है कि गिरने से जब आप पे अभिषेक आता है और आप गिर जाए, उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आप जब उठोगे तो अभिषेक को लेकर उठोगे। Because with the anointing, when you go back home, things are different. क्योंकि उस अभिषेक के साथ जब आप घर जाते हो तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। So Romans 15 verse 4. और रोमियो 15:4, Why are you in church? आप कलीसिया में क्यों आए? Why do you read the word? आप वचन क्यों पढ़ते हो? It is not for any other reason, but it is for whatever things were written before time, were written for our learning. If you are willing to learn, the faster you learn, the more you will grow. ऐसा होता है कि जो कुछ भी चीजें लिखी गई थी वो क्यों लिखी गई थी? इसलिए लिखी गई थी ताकि हम सीख पाए उनसे, और जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना बेहतर है हमारे वास्ते। And the only thing that the scripture will help us is also it gives us the comfort and the patience. और ऐसा है कि जो वचन है वो न सिर्फ हमें तसल्ली देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें शांति भी देता है। How many of you want faith? कितनों को विश्वास की जरूरत है? Faith comes from the word, but also not only faith, but patience has to go along with faith. ऐसा है कि वचन पढ़ के आपको विश्वास आता है, लेकिन विश्वास के साथ साथ तसल्ली भी होनी चाहिए। Hebrews 6 verse 12. इब्रानी 6:12 ये कहता है, You inherit what God has is not only by faith but also with patience. ऐसा होता है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है मिरास में, उसे आप प्राप्त करते हो ना सिर्फ विश्वास से, परंतु धैर्यवान बनकर भी। How many of you understand? Faith is very important. कितने लोग ये समझते हैं कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है? But with faith you will have patience also to wait for what is coming. तो ऐसा है कि विश्वास के साथ साथ आपके अंदर धीरज भी होगा उस इंतजार, उस प्रतीक्षा में कि आगे क्या आने वाला है। What was the problem with Abraham? इब्राहिम की क्या समस्या थी? He had faith, उसमें विश्वास था, but he didn't have patience. लेकिन उसमें सब्र नहीं था। And with that loss of patience, he had Ishmael with him. और उस सब्र की कमी के कारण उसके यहाँ इश्माइल का जन्म हुआ। I've seen too many Ishmaels in the house of God. मैंने परमेश्वर के भवन में बहुत सारे इश्माइलों को देखा है। Because if you don't learn to not only have faith but with patience, he inherited the promise. Verse 15. ऐसा है वचन 15 के न सिर्फ विश्वास के साथ उसमें धीरज था, परंतु उसके साथ उसने उस प्रतिज्ञा को भी प्राप्त किया। After he had patiently endured. क्योंकि उसने धीरज के साथ, सब्र के साथ उस चीज को सहा था। And what is the gap between faith and patience? और विश्वास और सब्र के बीच में कितनी दरार कितनी है? ये परमेश्वर की शांति होनी चाहिए बीच में। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? Some of us are full of faith. हम में से बहुत से जो हैं वो विश्वास से भरे पड़े हैं। But if you want to catch what God has promised to you, you don't only need faith, you need the patience. तो ऐसा है कि अगर आप वो पकड़ना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, तो विश्वास के साथ साथ आपके अंदर सब्र यानी धीरज भी होना चाहिए। But if you only have faith, you will not get the promise. अगर आपके पास केवल विश्वास ही है तो वो प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होगी। Hebrews 6:12 says faith and patience are plus equals to promise. ऐसा होता है कि इब्रानी 6:12 ये कहती है कि विश्वास और धीरज मिलकर बनते हैं प्रतिज्ञा का पूरा होना। But if I have faith, if I don't have the balance of peace,
I cannot have the patience. ऐसा है कि अगर मेरे पास विश्वास है लेकिन संतुलन में शांति नहीं है तो फिर मैं खुश नहीं रह सकता। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं जो आपसे कह रहा हूँ? That's the reason why Jesus says, I give you, John 14 verse 26, I give you the Holy Spirit. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:26 में कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूँ, Who is called the Comforter. जो तुम्हें तसल्ली देने वाला है, सलाहकार है तुम्हारा। When Jesus comes, He came, He said, I'm leaving you, but I'm giving you something better than myself. जब यीशु आए थे और जब जाने लगे तो वो कहने लगे मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं अपने से बेहतर कोई शख्स तुम्हें देके जाऊंगा। And everybody's, the disciples says, can there be anything better than Jesus? तो लोगों ने पूछा, जितने चेले थे, क्या यीशु से भी बेहतर कोई और चीज हो सकती है? Jesus says, I can be in one place at one time, but the Holy Spirit will be with you at all times. यीशु ने कहा कि एक समय में मैं एक जगह हो सकता हूँ, परंतु पवित्र आत्मा सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। He will not only be with you, He will be in you. न सिर्फ तुम्हारे साथ होगा परंतु तुम्हारे अंदर होगा। And if you carry the Holy Spirit, John 14:26 says, if you have the Holy Spirit, then verse 27 is going to be a portion that you have. तो ऐसा है कि यूहन्ना 14:26 ये कहता है कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तब 27 जो वचन है वो आपका भाग बनेगा। Because in 26 he says, whatever I have said unto you, the Holy Spirit is going to bring it to remembrance. तो वहाँ पर कहते हैं 27 में कि जो 26 में जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था पवित्र आत्मा तुम्हें वो याद दिलाएंगे। How many of you know a little bit of what is a stimulus and what is a response? कितने लोग ये जानते हैं कि हमें कोई संवेदनशीलता या हमें कुछ महसूस होता है जिसे स्टिमुलस कहते हैं, कोई एहसास, और आपका रिस्पॉन्स यानी कि आप उसके जवाब में क्या करते हो? Are you getting what I'm saying? एहसास क्या होता है? You have no control over the stimulus, जो आपको एहसास होते हैं उनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, but you have the control. What is stimulus? Stimulus is external factors. और जो एहसास होता है वो बाहर से आपको आकर स्पर्श करता है। It's not only circumstances, it is people. ये केवल आपकी परिस्थितियां नहीं होती, ये लोग भी होते हैं। Do you have control over what people say to you? क्या आपको उसके ऊपर नियंत्रण है कि लोग आपसे क्या कहते हैं? Whether they are nice to you or they are bad to you? क्या वो आपसे अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या आप उसके ऊपर काबू कर सकते हो? Even your own children, you have no control. अपने औलाद के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर भी आपको कोई नियंत्रण नहीं है। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे You हो क्या have कह रहा हूं? no control over anything. आपका किसी के ऊपर कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, But you can have control over your response to what is happening. लेकिन जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसके ऊपर आप वश रख सकते हो। स्टिमुलस। Are you getting what I'm saying? I'm doing a stimulus. ये जो है एहसास जगा रहे हैं। How much he will dance is up to him. आप कितना मैं नाचूंगा वो मुझ पर है, मैं कंट्रोल करूँ इसको अपने आप को। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? I'm not only speaking of all the tickle that you're going to get. The enemy will tickle you to terrorize you. ऐसा है कि मैं उन सारी गुदगुदी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको शैतान शत्रु इतना गुदगुदाएगा कि आप डर जाओगे। The enemy will bring people. The enemy may bring circumstances to bring the stimuli. ऐसा है कि शैतान जो है वो लोगों को लेकर आएगा, परिस्थितियों को लेकर आएगा ताकि वो आपको छेड़े। But the more the stimulus the enemy brings, the more the anointing that is over you has to work. ऐसा है कि जितना ज्यादा शैतान आपको छेड़ेगा उतना ज्यादा जो अभिषेक आपके ऊपर है उसको काम करना है। Because the Christ in you is the hope of glory. क्योंकि जो मसीह आपके अंदर है वो उस महिमा की आशा है। It is not glamour, it is glory that is seen in you. यहाँ पर कोई चमक धमक नहीं है, परंतु ये वो महिमा है जो आप पे प्रकट हो रही है। Everybody has got chamak damak. हर किसी में वो ग्लैमर है। But when the stimuli comes, लेकिन जब वो छेड़खानी होती है, then only you will see how much is the chamak damak. और फिर आपको पता चलेगा कि वो ग्लैमर कितना है उसके पीछे। Have you seen that? क्या आपने वो देखा है? Because in the church there are many chamak damaks. क्योंकि चर्च के अंदर हम बहुत चमक धमक देखते हैं। You can have praise and worship like fantastic praise and worship. Nobody sings like you. ऐसा है कि स्तुति आराधना जब होती है तो बहुत जबरदस्त होती है, आपके समान कोई गाने वाला नहीं है। But when you go back and face the same circumstances, can you still lift up your hands and say praise the Lord? लेकिन जब आप घर वापस जाते हो वही बुरी परिस्थिति आपके सामने आती है तो क्या तब आप अपने हाथ उठाकर कह सकते हो प्रभु की स्तुति है?
When your own family comes against you, can you still say praise the Lord? क्या जब आपका परिवार आपके विरुद्ध खड़ा होता है तो क्या तब आप कह सकते हो प्रभु की स्तुति हो? Because the stimuli is made for the response to come. क्योंकि ये जो छेड़खानी है, ये जो एहसास है, ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया। So in the office also there will be a stimuli. और ऑफिस में भी कोई आपको आके सताएगा, छेड़ेगा। There will be situations, but the same stimuli for a believer is an opportunity to get promoted. और ऐसा है कि एक विश्वासी के लिए भी जब इस प्रकार की छेड़खानी होगी, तब उसके लिए ये एक जगह है जहाँ वो तरक्की करेगा। Whereas for the same who is not anointed, it is going to be annoying. ऐसा है कि जिस पे अभिषेक नहीं है, वो इसके कारणवश परेशान हो जाएगा। So it is so important for you to understand that you carry Jehovah Shalom. Like Gideon had an altar, your body is the altar for Jehovah Shalom to come. तो इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप यहोवा शैलोम को लेकर अपने साथ चलते हो। जिस प्रकार से गिदोन के पास वो वेदी थी जिसमें यहोवा शैलोम थे, उसी प्रकार से आप भी वो वेदी बने हो। The only way you can maintain Jehovah Shalom is to have whatever I have said unto you, He will bring all things to your remembrance. और यहोवा शैलोम को अपने साथ लेके चलने की चलने का एक ही रास्ता है कि आप उस चीज को याद रखें जो यीशु ने कहा था कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो तुम्हें वो सारी चीजें याद दिलाए जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। I can give as much stimuli to him as I want. मैं जितना चाहूँ इसको गुदगुदी कर सकता हूँ। But if he is thinking about scriptures, लेकिन अगर मैं वचन के बारे में सोच रहा हूँ, this gudgudi is not going to make any difference. तो ये गुदगुदी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Because the Holy Spirit is speaking to him and his mind is, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on me. ऐसा है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगी और वचन इस प्रकार से कहता है कि वो एकदम संपूर्ण शांति में रहेगा जिसका मन मुझ पर स्थिर है। That's Isaiah 26 verse 3. ये यशाया 21:23 है। Okay, thou will keep him in perfect peace. वो संपूर्ण शांति में बनाए रखेगा। Whose mind is stayed not on the stimuli but on God Himself. That is the scriptures. जिसका मन परमेश्वर पे उस छेड़खानी पर नहीं है। Because he trusts in the Lord Jehovah. क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखता है। Back to John 14:26. When He brings things to your remembrance. यूहन्ना 14:26 पे लौटते हैं जब वो आपको चीजें याद दिलाएगा। All stimuli around you is made for you to react. और आपके इर्द गिर्द जो भी छेड़खानी है वो इसलिए की जाती है ताकि आप कुछ करें। There is a difference between some people react, some people respond. ऐसा है कि कुछ लोग जो इनकी प्रतिक्रिया होती है, कुछ लोग जो इसका जवाब देते हैं। What is the difference between reaction and response? वो क्या उन दोनों के बीच में क्या फर्क है कि आप अचानक से कुछ कर बैठते हो और दूसरा कि आप जवाब देते हो। A reaction is always something that you do out of impulse. ऐसा होता है कि जो प्रतिक्रिया अचानक से हो जाती है, अचानक से स्वचालित रूप से होता है, वो स्वचालित रूप से हो जाता है। You just but response you have control over it. लेकिन जो आपकी जवाब आप देंगे उसके ऊपर आपका वश चलता है। आप सोच के दोगे जवाब। Are you getting what I'm saying? The word responsible has come from that word response. और जो शब्द जिम्मेदार है उसी से निकल कर आया अंग्रेजी में। Ability to respond is responsible. ऐसा होता है कि जवाब देने की जो योग्यता है वही जिम्मेदारी है। That's why a believer is responsible. इसी वास्ते एक विश्वासी योग्य होता है। He's not only a believer, मेरे पास सब rights हैं। God has given me His righteousness. ऐसा है कि वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे पास सारे के सारे अधिकार हैं, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मुझे दे रखी है। Everything Christ has given it to me. I've got all the rights. ऐसा है कि जो कुछ भी यीशु के अधिकार में था वो सारा का सारा मुझे दे दिया गया है। I am very much for people who have the rights. You have the rights in Christ. ऐसा है कि मैं उन लोगों के हक में हूँ, उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि हमारे पास यीशु मसीह के सारे अधिकार हैं। You have all the faith to have the rights. आपके पास वो पूरा विश्वास है ताकि आप वो अधिकार को ग्रहण कर सकें। But the balance is kept when you are responsible to maintain the peace, to have the patience to inherit the promise. ऐसा होता है वो संतुलन तब कायम होता है जब आपके अंदर वो शांति है, शांति के साथ वो सब्र है ताकि उन सारी की सारी प्रतिज्ञाओं को आप हासिल कर सकें।
Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हो हम आपसे क्या कह रहे हैं? When there is a stimuli, you don't react immediately, but you just wait and say, Lord, I have the peace in this situation. ऐसा होता है कि जब आपको छेड़ा जाता है तो आप तुरंत जो है कुछ जवाब मत दीजिएगा, लेकिन आप प्रभु से कहिए कि मेरे पास शांति है प्रभु, उसके बाद मैं सोच समझ के करूँगा जो भी करना है। What is the reason the Holy Spirit is given to you? वो किस कारणवश पवित्र आत्मा आपको दिए गए हैं? Isaiah 61 verse 1. यशाया 61 का 1 हम देखते हैं। This is the beautiful thing that happens for anybody who gets the Holy Spirit. ये उन सब के लिए होता है, ये एक बड़ी सुंदर बात है जिनको पवित्र आत्मा दिया जाता है। I love when Zoe sings or when Mona brings up that Holy Ghost fire. अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जोया बहन जो है वो गाती थी और मोना जो है वो गीत लेकर आती हैं। Very soon we're going to have more holy fire coming. और बहुत जल्द हमारे पास और भी उस पवित्र अग्नि का आगमन होने वाला है। But if that holy fire has to remain in you, then you need to carry the anointing of the Holy Spirit. अगर आप चाहते हैं कि वो पवित्र अग्नि आपके अंदर रहे, तब आपको वो अभिषेक अपने साथ लिए चलना है। So if you have Jesus, you have the privilege to have the anointing. अगर आपके पास यीशु है, तब आपके पास वो उत्तराधिकार है ताकि आप उस अभिषेक को लेकर चलें। How many of you love to see some preacher who is anointed? कितने लोग ऐसे प्रवक्ता को देखना पसंद करते हैं जिसमें अभिषेक होता है? How many of you know when John 2:20 says you are anointed? और आपको कितना अच्छा लगता है जब यूहन्ना 2:20 कहता है कि तुम अभिषेक हो? How many of you know that you are not only anointed when you do praise and worship? और आप में से कितने जानते हैं कि आप केवल जब स्तुति आराधना ही करते हो तभी आपके ऊपर अभिषेक नहीं होता है? When I feel the goosebumps, then I feel anointed. और जब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तब मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा आए हैं। 1 John 2:20 says you are anointed forever. एक यूहन्ना 2:20 ये कहता है कि तुम सदा सर्वदा के लिए अभिषेक किए गए हो। So whether you are in church, you are anointed. You are at home, you are anointed. तो चाहे आप कलीसिया में हो आप पे अभिषेक है, चाहे आप घर पर हो आप पे अभिषेक होगा। So you have the control over what's happening over your life more than anybody else. और किसी दूसरे से कहीं अधिक आपको अपने जीवन के ऊपर पूरा वश होगा। Anything that happens around you is subjected to what you want to do with them. ऐसा होता है कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है ये उस पर निर्भर है कि आप उसको लेकर क्या करना चाहते हो। I love what Brother Ram Babu mentioned. You understand? If God owns the kingdom, the heaven and the earth belongs to Him. वो बात जो राम बाबू ने कही वो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मन को भाई थी कि अगर परमेश्वर को है जिसका ये स्वर्ग है और पृथ्वी है। And when Jesus came, the first paradigm shift, if you understand paradigm shift. और ऐसा होता है जब यीशु मसीह आए तो वो जो सीमाएं थी वो हटकर यहाँ पर आई। Everybody felt they and Jehovah was so far. और लोगों को ये लगा कि यीशु मसीह और पिता यहोवा जो है वो बहुत दूर है। All Israel felt that there was such a gap. They never saw Him as Father. और जितना भी इज़राइल था उन्होंने देखा कि इनके बीच में कितना अंतर आ गया है, कितनी दूरी पैदा हो गई है। उन्होंने कभी उनको यहोवा पिता के रूप में नहीं देखा। The first thing that Jesus did was revolutionize the whole thing when He said, "When you pray, say, Our Father which art in heaven." और एक बहुत बड़ी क्रांति यीशु मसीह लेकर आए जब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में रहता है। In other words, what He was saying that मेरा बाप का राज्य है। In other words, what He was saying was, this is my Father's kingdom. Are you getting what I'm saying? क्या समझ रहे हैं क्या? क्या तुम्हारा बाप का राज्य है? हाँ, मेरा बाप का राज्य है। Is it your Father's kingdom? Yes, it is my Father's kingdom. If you are at home, it is your Father's kingdom. अगर आप घर पर हो तो ये आपके बाप का राज है। If you are in the office, it is your Father's kingdom. अगर आप दफ्तर में हो तो ये भी आपके बाप का राज है। And whoever wants to do anything from their kingdom, you have a right because it is your kingdom. और जो कोई भी आप उस राज्य से कुछ करना चाहता है तो आपको पूरा अधिकार है क्योंकि ये राज्य आपका है। But the only one thing that you just have to do is to maintain your peace. लेकिन एक ही चीज आपको करनी है और वो है कि अपनी शांति बनाए रखें। If you have the faith, all that you have to do is maintain your patience, and when patience comes by maintaining your peace. ऐसा है कि अगर आपके पास शांति है तो अपना विश्वास बनाए रखिए और विश्वास बनाए रखने से शांति आती है। May your boss dance all the kind of dance he wants. आपके जो बॉस है मालिक है किस प्रकार का भी उनको उछल कूद करना है वो कर ले। He can do all the Bharatnatyam he wants. जिस प्रकार का भारतनाट्यम वो करना चाहते कर लें। He can
anything anybody can do, they have no control over you because तुम्हारा बाप का राज है. और जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं है क्योंकि राज्य आपके बाप का है. So if you understand this, Gideon, he was under oppression, and the first thing, Judges chapter 6 verse 12, which I'm sharing, in the Old Testament, if it is happening in this magnitude, what more it is for you. ऐसा होता है कि हम देखते हैं न्याय की पुस्तक के 6:12 में कि गिदोन जो था उसके ऊपर बहुत सारी परेशानी आ रही थी, उसको बहुत दबाव में रखा गया था. जब पुराने नियम में इस प्रकार से हो रहा था तो सोचिए कि आज के ज़माने में हम पर इस प्रकार का अत्याचार कितना हो सकता है और हो रहा है. How much more there is going to be a glory over you and it is over so much more over you. हाँ, गिदोन के ऊपर जितनी महिमा आ गई थी इतने अत्याचार के बावजूद भी, तो सोचिए आपके ऊपर कितनी महिमा आएगी. Because Jesus said, of all the prophets, John the Baptist is the topmost. और यीशु मसीह ने ये कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है सारे भविष्य वक्ताओं में सबसे प्रथम है. But he is the least in the kingdom of heaven. लेकिन स्वर्ग के राज्य में वो सबसे छोटा होगा. So if you can understand what I am talking about, if God is speaking to Gideon with this magnitude, how much more God sees you. तो ऐसा है कि आप समझ जाइए कि अगर गिदोन से परमेश्वर इस तरह से बात कर रहा है तो सोचिए आपसे किस प्रकार से कर रहा होगा. Do you know where is the problem? The problem is not the problem. The problem is how you see the problem. ऐसा है कि समस्या नहीं है, परंतु समस्या वो है कि किस नजर से आप समस्या को देखते हो. And the problem is because how you see yourself is how you see the problem. और समस्या ये है कि जिस नजर से आप अपने आप को देखते हो उसी नजर से आप समस्या को देखते हो. Being humble is not saying I'm nothing. नम्र होने का मतलब ये नहीं कि आप समझें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. You know, a lot of people think that's humility. You know, I am nothing. मैं तो कीड़ा ही हूँ. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नम्रता का मतलब है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं कुछ भी, मैं एक जमीन का कीड़ा हूँ. If you are a कीड़ा, then why would Jesus die for you? अगर आप एक कीड़ा होते तो यीशु मसीह आपके लिए क्यों मरते? Is this blood that is not that precious that he will die for you? क्या उसका लहू इतना कीमती नहीं था कि उसने आपके लिए अपने लहू को बहाया? How much more valuable are you that he gave his own son so that he can die so that you can have him and freely all things. तो सोचिए कि आप लोगों की कीमत कितनी बड़ी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि आप लोगों को उद्धार मिले. Change the way you see and your problems will change. जिस प्रकार से आप देखते हैं, जिस दृष्टि से देखते हैं, उस नजर को बदलिए तो फिर देखेंगे कि आपकी समस्या भी बदल जाएगी. Change the way you see yourself because God sees yourself a mighty person. ऐसा होता है कि आप अपने आप को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करें क्योंकि परमेश्वर आपको एक वीर योद्धा की नजर से देखता है. And the angel of the Lord appeared unto Gideon and said unto him, the Lord is with you, you mighty man of valor. और स्वर्गदूत था परमेश्वर का उसके पास आया और उससे ये कहने लगा कि प्रभु तेरे साथ है ऐ सुन वीर योद्धा. And see how Gideon is like most of the believers. और ये देखिए कि जो गिदोन है वो जो ज्यादातर विश्वासी होते हैं उन्हीं की प्रकार का है. You see verse 13 what happens? और 13वें वचन में आप देखेंगे किस प्रकार से होता है. Because things are not happening right in the office, I don't have the law. तो ऐसा होता है कि दफ्तर के अंदर हालात सही नहीं है तो हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है. This is absolutely see. And Gideon said, "Oh my Lord." और फिर गिदोन ने ये कहा कि हे मेरे प्रभु. How many of us sometimes you understand we negotiate with the Lord. कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करते हैं. And Satan is thrilled because all the stimulus is working. और जो शैतान है वो बड़ा खुश है क्योंकि जितनी भी छेड़खानी है वो काम कर रही है. Instead of you, like how Joshua asked for the captain, in whose side you are standing, the captain said you are asking the wrong question. In whose side are you standing? We should be always standing on the side of the scriptures. We should be standing always on the side of the Lord. ऐसा होता है कि यहोशू ने जब पूछा कि किसकी ओर तुम खड़े हो तो ये एक बहुत ही गलत सवाल था क्योंकि ये होना चाहिए कि हम लोगों को हमेशा उस ओर होना चाहिए जहाँ के वचन है और जहाँ पर प्रभु है. Any situation that is happening in your life, don't ask why is this thing happening. Say, Lord, in your situation I'm standing, what do I do?
ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई भी स्थिति हो रही है तो ये मत सोचिए कि प्रभु मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ। आपको ये कहना है कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा हूँ। Because the first thing the enemy will say that if you don't know where you stand, I can tell you where to stand. और दोस्त नहीं बल्कि शत्रु जो है वो आपसे हमेशा ये कहेगा, अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कहाँ खड़ा होना है तो वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ खड़ा रहना चाहिए। And he will make you stand with him and he'll be invisible. और वो आपके साथ अपने पास आपको खड़ा करेगा और वो खुद नजर नहीं आएगा। And all that he is saying to you, you think that you are thinking yourself. और वो सब बातें जो वो आपसे करता जाएगा आपको लगेगा कि ये आपकी अपनी सोच है। What is his first question? See this, Gideon. If the Lord be with us, why then is all these things happening? और गिदोन का पहला प्रश्न क्या उठता है, वो इस प्रकार से कहता है, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? The first thing I've seen most believers, they analyze the presence of the Lord by the things that are happening around. ऐसा होता है कि बहुत से जो विश्वासी उनके बारे में मैंने ये देखा है कि वो जो हालात उनके हैं उसका जायजा लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं। If God is happy with me, then things have to be well with me. अगर प्रभु मुझसे खुश है तो हर चीज सही होगी। That is absolutely not the way to see things. As a matter of fact, when things are not happening, God wants you to be the one to establish what is happening around you. ऐसा होता है कि चीजों को इस प्रकार से देखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उन चीजों को सिद्ध करें। But the peace that you carry is the answer to how you will be able to manage your situation. आप जो शांति आप लेकर अपने साथ चलते हो, उसी शांति आप अपनी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। The enemy knows that if he can stir your peace, he has stolen your inheritance. और शत्रु ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने आपकी शांति में कोलाहल मचाती है तो उसने आपसे आपके विरासत को छीन लिया। There's one preacher that mentioned about one of his messages. If he has stolen something, if you lose your peace, he can keep the goods. ऐसा होता है, एक प्रवक्ता ने बहुत अच्छा संदेश दिया था कि अगर आपने अपनी शांति को खो दिया है तब जो शत्रु है आपकी सारी सामग्री को ले सकता है। This preacher was cheated by somebody that of a good amount, and the Lord, and he said to the Lord, how can it be? I've lost my peace. This money is gone. ऐसा होता है कि जो प्रवक्ता था उसको किसी ने धोखा दिया था, उससे काफी भारी रकम धोखे में हड़प ली थी, तो ये कहता है कि प्रभु अब क्या करूं मैं, पैसों के साथ साथ मेरी शांति भी चली गई है। The Lord said to him simply one thing. प्रभु ने बस उससे एक ही बात कही, If you will keep your peace, you can keep the goods. तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम अपनी शांति बनाए रखोगे तो सारी की सारी सामग्री जो है, तुम्हारा सामान जो है तुम्हारे पास रहेगा। Within 1 week, this man shared his testimony. Within 1 week, there was an opportunity that came at his doorstep. और फिर ये व्यक्ति ये बताता है कि एक सप्ताह के अंदर इसके दरवाजे पर एक मौका आया। The only reason he could see that it was an opportunity because he had the peace. और सिर्फ एक ही कारणवश वो देख सका कि ये मौका है मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर शांति थी। And that was the key that he had that unlocked the door, because in that opportunity he got exactly double to what he lost. ऐसा होता है कि वो चाबी थी जिसके द्वारा वो ताले को खोल सकता था, और इसके बदले में उसे उसका दुगना मिला जितना उसके हाथ से गया था। If you know the value that the peace of God that he gives you in John 14:27 that passes all understanding, you will never want to lose it, because that is the key to your tomorrow. ऐसा होता है कि यूहन्ना 14:27 में जो कहा गया है कि जो शांति तुम्हें देता है, जो संसार से परे है, तो कोई नहीं जानता, अगर वो आप जान जाएंगे तो वो आपके कल के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और चाबी है। And Gideon was negotiating. This thing is happening, so that's why I don't see the Lord with me. और यहाँ पर गिदोन जो है वो एक किस्म की सौदेबाजी कर रहा था, वो कह रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। Verse 16. This is important because the only thing God promises to Gideon is my presence. I am with you. और 16वां वचन बहुत ही अहम है, क्योंकि एक ही चीज परमेश्वर ने उससे वादे के तौर पे कही कि मैं तेरे साथ हूँ। Verse 16. 16वां वचन, And the Lord said unto him, surely. यूहन्ना उससे कहा निश्चय। What is the guarantee that you are going to see what God has promised to you? यहाँ पर आश्वासन क्या है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। One thing only, that God is with you. एक ही बात कि परमेश्वर आपके साथ है।
anything that's happening in your life, you just know that if God is for you, who can be against you? बस एक ही बात आपको जीवन में जानना चाहिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन हो सकता है? So the one guarantee, and I love, God doesn't give you any kind of all this, you know, when you will know God, you're going to get it. He doesn't give you anything because faith doesn't hold on to anything, but faith is holding on to God Himself. ऐसा है कि परमेश्वर जो है ऐसा कोई आश्वासन आपको नहीं देता कि इसे थामे रखो, परंतु अगर विश्वास है तो विश्वास अपने आप में ये आश्वासन है कि परमेश्वर आपके साथ है। And one thing that you can hold on to is that heaven and earth may pass, but His word will not pass away. लेकिन एक चीज है जिसे आप हमेशा पकड़े रह सकते हो, थामे रह सकते हो। वचन कहता है कि स्वर्ग और धरती टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी टलने वाला नहीं। And this is one thing that will always take you from the ashes to bring beauty. तो ये ऐसी चीज है जो आपको राख से, टाट से उठाकर सुंदर मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा, आपको सुंदर बनाएगा। Verse 24. वचन 24। And most of the people I have seen that take communion, they are in that communion for that period of time. But after that, when they go to a different situation, they have lost the communion. ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उस संगति में होते हैं, लेकिन जब वहाँ से वो निकल जाते हैं तो फिर कुछ और ही हो जाते हैं। And verse 24, then Gideon built an altar. 24वां, तब गिदोन ने एक वेदी बनाई। How many of you want to be pillars in the church? कितने लोग कलीसिया में खंबे या स्तंभ बनना चाहते हैं? Before you become a pillar, you have to be an altar. एक खंबा बनने से पहले, स्तंभ बनने से पहले आपको एक वेदी बनने की जरूरत है। Are you getting what I'm saying? क्या समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? Because if you are not an altar, you अगर आप cannot be a pillar. अगर आप एक वेदी नहीं है तो तब आप एक स्तंभ भी नहीं बन सकते। What is the altar that Gideon did? तो वो कौन सी वेदी थी जो गिदोन ने तैयार की? In the Old Testament, it is with things, but in the New Testament, in the Old Testament it was temples. In the New Testament, it is, who is the temple? Your body is the temple. ऐसा होता है कि पुराने नियम में ऐसा था कि जो मंदिर हुआ करते थे, जो पत्थर की लकड़ी की चीजें होती थी, वो वेदी बनती थी। लेकिन आज नए नियम में हमारा शरीर जो है वो एक जीवित परमेश्वर का मंदिर है, उसके लिए वेदी है। Romans 12:1, you present your body to be the altar. ऐसा है रोमियो का 12:1 ये कहता है कि अपने शरीर को एक जीती जागती कुर्बानी के तौर पर पेश करो। This is a class line that you can always remember. If you are the altar, you will never falter. अब आपको एक चीज याद रखना चाहिए, अगर आप वेदी हैं तो आप कभी गिरने वाले नहीं। So whenever there is something that's bothering you, just become the altar. तो अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो आप एक वेदी बन जाइए। Holy Spirit, I receive you as my Jehovah Shalom. पवित्र आत्मा, मैं अपने यहोवा शलोम के तरह आपको ग्रहण करता हूँ। I have your peace that I have control over the stimuli, whatever is happening. मेरे पास आपकी शांति है और जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, जो भी छेड़खानी हो रही है, उसके ऊपर मेरा पूरा वश है, पूरा नियंत्रण है। Now I'm going to the second phase of the message, which is going to be more beautiful than ever. और अब जो दूसरा पंथ है इस संदेश का, उस पर हम जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाला है। Because I have established the altar now. क्योंकि मैंने अब उस वेदी को तैयार कर दिया है। Okay, now what would be beautiful in God's eyes? अब परमेश्वर की दृष्टि में क्या बात सुंदर हो सकती है? In the eyes of someone who is beauty himself. उसकी नजर में जो स्वयं बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। The one who made all things beautiful, what would be beautiful in front of him? जिसने हर एक चीज को सुंदर बनाया है, उसकी नजर में कौन सी चीज सुंदर हो सकती है? The person who is having peace. वो व्यक्ति जिसके अंदर शांति है। Do you understand? When you have peace, God sees beauty inside of you. और जब आपके अंदर परमेश्वर शांति देखता है तो उसे आपके अंदर वो सुंदरता नजर आती है। Okay, 1 Peter 3:4 in the Amplified. I love this. If you get it in the Amplified, you got it. ऐसा है कि पहला पत्रस 3:4 में है, मगर वो एम्प्लीफाइड बाइबल अगर आपके पास है, जो विस्तार से लिखी हुई है, तो उसमें जो लिखा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है। पहला पत्रस
3, 4. 4. Okay, this is speaking about to women how to win their men. अब यहाँ पर उन स्त्रियों से बात की जा रही है कि किस प्रकार से वो अपने पतियों का मन जीत सकते हैं। Why is it written to women? Because it is difficult to win men. ऐसा है कि औरतों के लिए क्यों लिखा गया, क्योंकि अपने पति को जीतना बहुत मुश्किल होता है। You can win everybody else, but sometimes the trouble is at home. ऐसा होता है कि आप हर एक के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, हर एक का दिल जीत सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो घर में आती है। But if this is applied not only for women but for us, because we are the bride of Christ, we will be able to win every situation that we face. ऐसा है कि न सिर्फ ये औरतों के ऊपर, महिलाओं पर लागू होता है, परंतु हमारे ऊपर भी, क्योंकि हम मसीह की दुल्हन है हर एक स्थिति में। In verse 3, I'll give you just the gist. He's saying, women, I don't want you to be only with the outward appearing. Just look, Vindhya, Kajal. ऐसा है कि वो पतरस जो है वो इस प्रकार से महिलाओं से कहता है कि मैं सिर्फ ये नहीं देखना चाहता औरतों की तुमने बिंदी लगा ली है, थोड़ा सा गहना पहन लिया है, बालियां लगा ली हैं। Not the outward adorning of the jewelry that is seen, but the, now catch this, but let it be the inward adorning or the beauty of the hidden person of the heart. ऐसा होता है कि ये जो बाहर की चीज है, बाहर के वस्त्र है, सोना है, चांदी है, गहने हैं, वो नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या सुंदरता छिपी हुई है, तुम्हारी जो आत्मा है वो देखना चाहता है। What is the beautiful thing that he is talking about? वो कौन सी सुंदर चीज है जिसकी बात ये कर रहा है? With the incorruptible and unfading charm. वो जो कभी भ्रष्ट ना होने वाली एक आकर्षण है आपके अंदर। एक charm है। एक आकर्षण जो होता है आपके अंदर वो होना चाहिए, जो कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हो। Are you getting what I mean? क्या आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? Some people get charmed. कुछ लोग जो बड़े मोहित हो जाते हैं। God is charmed by a gentle and a peaceful spirit. परमेश्वर जो है मोहित हो जाता है एक ऐसी आत्मा से जो कि नम्र है और जो बहुत ही खामोश रहती है, शांति में रहती है। A goldsmith knows the purity of the gold sheet. When it comes out, when he can see his reflection, then he knows it's become pure. ऐसा होता है कि एक जो सुधार है वो सोने की जो चादर है वो जब निकल कर आती है तो उसे देखता है और तब समझता है कि ये बिल्कुल शुद्ध हो गया जब वो अपनी सूरत उसमें देख पाता है। In the same way, when God sees you peaceful in tribulation, He sees Christ in you. और जब संकट में, आपत्ति में परमेश्वर आपको शांति में देखता है तब वो आपके अंदर मसीह को देखता है। A gentle and a peaceful spirit. एक बहुत ही नम्र और शांतिमय आत्मा। If you have peace with God, you have peace with yourself. अगर आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं तो आपके मन में भी शांति होगी। You see yourself how God sees you. आप अपने आप को उस प्रकार से देखोगे जिस प्रकार से परमेश्वर आपको देखता है। And when you are at peace with yourself, you are at peace with everybody else. और जब आप अपने अंदर ही शांत हो तो आप हर किसी के साथ शांति में रहोगे। And here it is saying, what is the definition of a gentle and a peaceful spirit? और यहाँ पर इसका मतलब क्या, अर्थ क्या निकल कर आता है, एक नम्र और एक शांतिमय आत्मा। I know one believer, every time I tell the person what is the solution, he says, मैं हूँ ना। एक विश्वासी जिनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका समाधान क्या, तो कहता मैं हूँ ना। When I am telling her that this is required, this person is telling, but I am already doing it. और जब मैं इस व्यक्ति से ये कहता हूँ कि इन चीजों की जरूरत है तो वो कहती है कि मैं कर रही हूँ ना। So sometimes you got to have an amplified version of what you're talking about. और कभी-कभी उनको एक विस्तार वाला उसका अनुवाद चाहिए कि वो क्या बोल रही है। So what is a peaceful spirit which is not anxious or wrought up? तो वो एक शांतिमय आत्मा का मतलब क्या है, जो कि परेशान और कौतूहल में और गुस्से में रहने वाली नहीं। The best description is Proverbs 17:27. और सबसे अच्छा इसका एक जो विस्तार है वो है नीति वचन 17:4 17:27 नीति वचन। One of the best scriptures, if you can apply this
ये एक बेहतरीन वचन है, अगर आप ये अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। What was the earlier verse? इससे पहले वाला वचन क्या था? Joshua, the earlier reference I want that cool spirit. The different version, what was it? Amplified. See the beautiful thing how it is actually. Okay? In the Amplified, he who has knowledge spares his words. 17:27 में है नीति वचन में कि जिसके पास ज्ञान है, And a man of understanding has a cool spirit. और एक समझदार आदमी की आत्मा जो है बड़ी शांत रहती है, ठंडी रहती है। Cool. You know trend है cool. तो ये एक तरीका बन गया, एक स्टाइल बन गया है, ठंडा यानी कूल। He's a cool guy. ये एक बड़ा ठंडा व्यक्ति है। All believers have to be cool. जितने भी विश्वासी उन्हें बड़ा कूल रहना चाहिए। Every stimuli is making him to be hot. और जितनी भी छेड़खानी उसे गर्म कर रही है, He has to be cool. उसे बिल्कुल ठंडा रहना है। Why? Because in the King James, the same cool spirit is translated. और किंग जेम्स का जो अनुवाद है उसके अंदर राजा है जेम्स का जो अनुवाद है उसमें उसी को उसका जो अनुवाद है वो है King James. जेम्स में क्या लिखते हैं? He that has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a. Excellent. So what is an excellent spirit? एक ज्ञानी आत्मा शांत रहती है, हिंदी में वही है, तो आत्मा शांत रहती है, वो ये शांत। Daniel had an excellent spirit. जो दानियल थे उनकी आत्मा जो थी बड़ी ठंडी ठंडी थी। Okay, Daniel 5, don't turn there, Daniel 5:13, Daniel 6:3. Okay, Daniel was a man of excellent spirit. That means Daniel was of a. दानियल जो थे कैसी आत्मा थी जो बड़ी ठंडी ठंडी रहती थी। Okay, so one thing that's very important is that you maintain your cool in all temperatures. तो ऐसा है कि आप अपना जो ठंडक है, चाहे कैसा भी तपास हो उसके अंदर आप उसे ठंडा ठंडा रखें। तापमान जो भी हो। Do you know AC has got a thermostat? और कितनों को पता है कि एसी हो तो उसमें एक चीज है जिसे थर्मोस्टेट कहते हैं। Thermostat is to bring the temperature down to the temperature that you want it to be. और थर्मोस्टेट का काम ये है कि उस तापमान को उतना नीचे गिराता है जितना आप चाहते हो रहे। A temperature is the one that defines, that tells the temperature of the room. और जो उसका तापमान है वो बताता है कि इस कमरे का तापमान कितना है। Don't be a temperature, be a thermostat. तो इसीलिए आप तापमान मत बनिए बल्कि थर्मोस्टेट बनिए जो कि तापमान को अपने वश में रखता है। Every believer is meant to bring the coolness that is inside everywhere they go. और जो भी विश्वासी उसकी तरफ से ये करना है कि जहाँ भी वो जाता है वो एक ठंडक सी पैदा करे। And if you are cool inside, you are cool with your words. अगर आप अंदर से ठंडे हो तो आप अपनी भाषा में भी ठंडे रहोगे। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? Some of us want to control our coolness, but inside, मुंह से ज़बान से अपनी ठंडक को काबू में रखना चाहते हैं लेकिन अंदर से मचलते हैं। I've tried it 3 days of coolness, but the 4th day, then it comes with full force. ऐसा होता है कि 3 दिन तक वो ठंडक तो पेट में रहती है लेकिन चौथे दिन वो निकल कर आती है। But if you apply this altar to be Jehovah Shalom, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो वेदी है इस पे यहोवा शालोम रहे, the Holy Spirit will keep speaking to you not about the stimulus but about the scriptures. तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे वचनों के बारे में, ना कि वो जो छेड़खानी हो रही है उसके साथ। You are of an excellent spirit. आप जो हो एक बड़ी ठंडी आत्मा वाले हो। You got the peace. आपके अंदर शांति है। Just maintain your peace, then tomorrow your promise will be there. बस अपनी शांति बनाए रखो और कल तुम्हारा वादा पूरा हो जाएगा। If you lose your peace, you lose your promise. अगर आप अपनी शांति को खो दोगे तो अपना वादा भी खो दोगे। So maintain your peace because this peace is power. और इस शांति को बनाए रखो क्योंकि इसी के अंदर पूरी सामर्थ्य है। Amen. आमीन। I got the faith, but I need the patience. मेरे पास विश्वास तो है लेकिन मुझे साथ में सब्र भी चाहिए। And here you will see in verse 9, 1 Peter 3:9, what do you do
A man who is peaceful is not affected by any evil. ऐसा होता है कि एक आदमी जो शांति में रहता है वो किसी भी दुष्ट या बुरी चीज से प्रभावित नहीं होता, Because he is not looking anywhere else but to God. क्योंकि वो यहाँ वहाँ नहीं देखता, केवल उसकी नजर परमेश्वर पे होती है। Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that thereunto you are called, that you should inherit a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। How many of you are called? कितनों को बुलाया गया है? Everybody loves. I'm called. सब कह रहे हैं बुलाया बुलाया बुलाया। Pastor का calling है, Apostle का calling है, प्रेरित की पुकार है, बुलाहट है, Prophet की calling है. एक भविष्यद्वक्ता की बुलाहट है। Whether you have any kind of calling, the base calling is that you are already called for this. और चाहे आपके पास कोई भी बुलाहट हो, लेकिन सबसे बेहतरीन बुलाहट ये है कि आपको इसके लिए बुलाया गया है। What is the calling? वो बुलाहट क्या है? That you are going to inherit a blessing when you are not returning evil for evil. ऐसा है कि आप एक आशीष के वारिस बनोगे जब आप बुराई के बदले बुराई नहीं करोगे। Because when you are called for that purpose, you are called to receive the blessing in a situation that is evil. ऐसा होता है जब आपको बुलाहट होती है तब आपको एक ऐसी परिस्थिति के अंदर आशीष मिलने वाली है जहाँ पर गड़बड़ है। The only thing that you got to control for this ashish to come. और बस एक ही चीज को आपके नियंत्रण में रखना है ताकि यह आशीष आप तक आए। Verse 10. वचन 10 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। In Jakarta, there was a man by the name of Mr. Zip. जकार्ता में कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर श्रीमान जिप। नहीं, आपकी दुकान में तो काम नहीं करते थे डीलरिंग। This man got married to one of our believer girls. इस व्यक्ति की शादी हमारे यहाँ की एक विश्वासी लड़की से हो गई थी। Then we had meetings where Uncle Collins had gone there and ministered. हमारी सभाएं हुआ करती थी। एक बार अंकल कॉलिन भी वहाँ पर आए थे, पधारे थे। And this man used to always sit and just listen. और ये व्यक्ति हमेशा बैठ के बस सुना करता था। We even used to doubt whether he was a believer because just this lady brought this guy. और हमें कभी-कभी ये होता था, हम सोचते थे क्या ये विश्वासी है कि नहीं है, क्योंकि ये महिला उसे लेकर आई थी। And every time the meeting gets over, he would always zip up. और जब जैसे ही वो सेवा खत्म होती थी, वो उठ के फौरन निकल जाते थे। Today he is the senior pastor of the church in Jakarta. आज वो एक वरिष्ठ पासवान है उस कलीसिया के जो जकार्ता में है। Because one thing that he has done when they identified him as Mr. Zip, he listened, zipped his mouth, and zipped whenever there was any kind of something that was going on that he didn't want to be a part of. अब ऐसा था कि उसका नाम जिप बहुत सही था, क्योंकि वो आता था और सुनता था, अपने फोटो पे उसने जिप लगा के रखा था और जिप से निकल जाता था, क्योंकि वो जब देखता कि कोई ऐसी गड़बड़ की बात हो रही है, उसमें मुझे हाथ नहीं लेना है। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं? This is the key. If you will love life, keep your zip. ऐसा है कि यही वो चाबी, अगर आपको जीवन से प्रेम है तो अपना मुंह बंद रखिए। Amen? Amen. Make sure that you maintain because peace is in your mouth. तो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो शांति है ये आपके मुंह के अंदर होगी। And the earlier verse says that how do you return evil for evil? When somebody screams at you, you are just smiling. ऐसा होता है कि इससे पहले वाले उसमें कहा गया है कि बुराई के बदले बुराई मत कर, क्योंकि जब कोई आप पे जोर से चिल्लाता है तब उसे देख के बस मुस्कुरा दीजिए। When anybody is talking against you, you are zipping. और जब कोई आपके विरुद्ध बात करता है तो आपका मुंह बंद रहता है। So there is nothing stimuli that is affecting you because you are responsible. जो भी बोले बोल दो। ऐसा है कि अगर कोई भी आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे। You know that it has got no effect over you because you don't give a foothold.
अब ऐसा है कि आपको पता है कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि आपको उसकी परवाह नहीं है। Satan is only looking for that one word to enter into your mind, then he will have a stronghold. ऐसा है कि शैतान बस उस एक शब्द के इंतजार में है जो आपके मन में आएगा ताकि वहां उसे एक पैर रखने की जगह मिलेगी और वो अंदर आ जाएगा। And the moment it stays, it is you lost your peace. और जिस वक्त ये आकर आपके अंदर बस गया उसी वक्त आपकी शांति आपको छोड़ जाएगी। When your peace is lost, your patience is lost. और जब आपकी शांति जाएगी तो आपका धीरज भी साथ साथ चला जाएगा। Your patience is lost, your promise is lost. और जब आपका धीरज आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपका वादा भी चला जाएगा। All the vishwas is there is only vishwas, नाम का विश्वास है। Whatever faith is there, it will be for name's sake only. Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं? Because your faith without the patience and the peace in between is not going to reach anywhere. क्योंकि अगर जो आपका विश्वास है वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर धीरज नहीं है, तो आपको कहीं पर नहीं ले जाएगा। Have you understood this? क्या आप ये समझ गए हैं? See, this is written. Now I'm going to go to the next level, okay? ये लिखा हुआ है और इसके बाद हम तीसरे स्थान पे जाते हैं। Because you are experts and I know how beautiful you are. और मुझे पता है कि आप लोग विशेषज्ञ हैं और ये भी जानते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। When God sees beauty, He sees beauty in someone who is peaceful. और परमेश्वर जब सुंदरता को देखता है तो सुंदरता उसे उसमें नजर आती है जो कि शांति से रहता है। Now God sees beauty. He sees beauty in the one who is gentle with his words. ऐसा होता है परमेश्वर उसमें उस सुंदरता को पाता है जो अपने शब्दों को लेकर बहुत नम्र होता है। Okay, you're okay with that? क्या आप इन बातों को लेकर ठीक? 1 Peter 2:19. पहला पत्रस 2:19 हम देखते हैं। I brought you here. Now go one more step. मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। Now this is. Are you hearing? क्या आप सुन रहे हैं ये बात? Okay. Now what is God saying to you? अब परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? That if you, after doing everything right, you are still being bombarded. What do you have to do? और परमेश्वर ये कह रहा है कि हर चीज सही रीति से आप कर रहे हैं उसके बाद भी आपके ऊपर बमबारी हो रही है, तब आपको क्या करना होगा? I told you till now, you just maintain your peace. अब तक तो मैं ये कहते आया हूँ कि आप अपनी शांति बनाए रखें। Are you there already? क्या आप वहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं? No? I can't take you further if you're not there. मैं आपको आगे नहीं ले जा सकता अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। Now this is what God is saying. If you want your promise to come faster, अब प्रभु आपसे ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वादा जल्द से जल्द पूरा हो जाए, God's word is saying, now it doesn't make sense in the natural. आप परमेश्वर का वचन ये कह रहा है लेकिन जो स्वाभाविक रूप है वहाँ पर ये सही नहीं लगता है। But if you want to do what God is telling you to do and you will see what God wants to show you, it is called you be thankworthy. ऐसा होता है कि अगर आपको देखना है कि परमेश्वर क्या करने वाला है तो आप देखिएगा उसका मतलब ये है कि आपको हमेशा शुक्रगुजारी करनी है। Not I did everything right and see what the answer will be. ऐसा होता है कि मैंने सब कुछ सही किया लेकिन उसके बदले में मेरे साथ क्या किया जा रहा है। Are you getting what I'm saying? I'm maintaining my peace, but थोड़ा तो है ना? क्या है मैं अपनी शांति बनाए रखे हूँ लेकिन ये थोड़ा बहुत गड़बड़ तो नहीं। कुछ तो होता है ना? Something happens. Are you getting what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है हम जो कह रहे हैं? From today, the कुछ होता है is thank you Jesus. And from आज से that whatever something happens वो यीशु के लिए। In spite of everything that you have done that is well, if it is you are bombarded for doing what is right, you suffer wrongfully, you are more closer to Jesus than ever before. ऐसा होता है कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, सही किया है, उसके बाद भी आपको फटकारा जाता है, आपको बुरा भला कहा जाता है। ये सब होने के बाद भी ऐसा है कि आप यीशु और आप शांत रहते हैं तो आप यीशु के और करीब चले जाते हैं। The Father is seeing, अरे ये तो मेरा बेटा है। पिता ये देखकर कहता है कि ये तो मेरा बेटा है। The Father says, "This is my son." This is like Christ, the way when he was smitten, when he was spat, he didn't even speak a word. तो ये तो बिल्कुल मसीह जैसा है। मसीह के ऊपर थूका गया था, उनको बुरी बातें कही गई थी, उन्हें मारा गया था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा अपने मुंह से। Christ said, now
Let's complete this. चलिए आइए हम इसे पूरा करते हैं। Verse 20. वचन 20वां वचन हम देखते हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। This is acceptable. ये परमेश्वर को भाता है, This is- परमेश्वर स्वीकार करता है इसे। God is saying you are becoming like me. परमेश्वर कह रहा है कि तुम समान बनते जा रहे हो। So don't say that I have done everything and see where I have placed. और ये मत कहिए कि मैंने सब कुछ किया लेकिन देखो आज मेरा स्थान कहाँ पर है। But God has placed you so that you become more like Jesus. और मगर परमेश्वर ने आपको वहाँ पर रखा है ताकि आप यीशु समान और बनते जाओ। Verse 21. 21वां वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Are you getting? क्या आप समझ रहे हैं? How many of you want to follow Jesus? कितने लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? Even now you want to still follow Jesus? क्या इसके बावजूद आप Are you यीशु के sure you पीछे want to follow आप Jesus? निश्चित आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? Then this is the qualification of following Jesus. तो ये वो विशेषता है जिसके बल पर आप यीशु के पीछे चल सकते हैं। That after doing the right thing, you are treated wrongfully. ऐसा है कि सही करने के बाद भी आपके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा And है, after you are treated wrongfully, you do not have anything but the peace of God. लेकिन बुरा सलूक होने के साथ बावजूद भी आप जो हो परमेश्वर की शांति बनाए रखते हैं। And the evidence that you have the peace of God is not मेरे पास peace है, but you are thanking the Lord. ऐसा है कि उसका निशान ये है कि आपके अंदर शांति है कि आप उसके बावजूद भी प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। Verse 22. वचन 22 में पढ़ेंगे, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। Amen. What was the example? यहाँ पर मिसाल क्या थी? He didn't do any sin उसने कोई पाप नहीं किया because he didn't open his mouth. क्योंकि उसने अपना मुंह नहीं खोला। If you will not open your mouth, you will stay away from sin. अगर आप अपना मुंह नहीं खोलोगे तो आप पाप से दूर रहोगे। Verse 23. 23वां वचन कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। God is a just God. हमारा परमेश्वर एक सच्चा न्याय है। When you put your judgment in His presence, जब आप अपना न्याय उसके सामने लेकर जाते हो without a word, बिना कुछ कहे, you will get your things faster than anybody else. तो आपको जो मिलना है वो आपको किसी और से कहीं जल्दी मिल जाएगा। I came in 1994 in Bombay. मैं सन 1994 में बम्बई आया था, Not knowing a single soul. एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था। The Lord brought me to a church, the Assemblies of God here. और परमेश्वर मुझे एक ऐसी कलीसिया में लाया जिसका नाम था Assemblies of God। I was there for a short time, but there was a lot of committee business, and the committee was doing the steering. और ऐसा होता है कि वहाँ पर मैं थोड़े ही समय के लिए था, वहाँ पर एक कमेटी थी और वो ये सब काम कर रहे थे। And before anything happened, they started doing things. The one thing that God kept to me and not myself was to maintain my peace. ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा न्याय किया, लेकिन एक चीज परमेश्वर ने मेरे द्वारा कराई कि मैं अपनी शांति बनाए रखूं। Then we started January 15, 1995. We started the first Sindhi church in Bombay. और फिर जनवरी 15 सन 1995 में हमने इस मुंबई में सबसे पहला सिंधी चर्च स्थापित किया। Everybody was a pioneer of the Sindhi church. और सिंधी चर्च के जितने भी लोग थे वो स्थापक थे। And after 3 years, और 3 वर्षों के बाद some pastors from the Sindhi church कुछ पास्टर थे जो सिंधी चर्च में थे, came to my home मेरे घर पर आए, because I had a meeting of someone. Uncle Colin's meetings was in my house. क्योंकि अंकल कॉलिन की सभाएं जो थी, मीटिंग्स थी, हमारे घर में होती थी। So they said that if you are having these meetings, you can't be in our church. उन्होंने कहा अगर तुम ये मीटिंग्स यहाँ पर रख रहे हो तो तुम हमारी चर्च से नहीं जुड़ सकते। I thank God for the woman of God in my life. और मैं परमेश्वर की भेजी हुई उस महिला के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। Sometimes God will send you women or men of God in your life, and it is a blessing if today you have heard from a man of God that you will maintain it at the right time.
और प्रभु अपने जनों को भेजता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और अगर आज आपने सुना है प्रभु ने जो बात की है, in the midst of the two pastors who told me to come to stay out of the church that I find here. और वो जो दो पास्टर थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस कलीसिया से बाहर रहूं जिसका मैं स्थापक भी था। And I was in the Bandra house, and the first thing that came to my mind was that tell them to get out. और पहली बात जो मेरे मन में आई, मैं बांद्रा वाले अपने फ्लैट में था, मेरे मन में आया कि मैं उनसे कहूं कि निकल जाओ यहाँ से। And I thank God for my wife there who said, you do whatever you have to do later on, but today they are our guests. तो इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि आज आपको जो करना है बाद में करिए, लेकिन आज मत करिएगा क्योंकि ये हमारे मेहमान बन के आए हैं। And whatever you decide later on, you maintain your peace. और बाद में भी आपको जो फैसला है जो करना है सो करो, लेकिन फिलहाल अपनी शांति बनाए रखो। Jehovah Shalom came in place. यहोवा शालोम जो है वहाँ पर आ गए। And I thank God because at that time, chai le lo, sab kha lo, aur jao. So at that time it so happened that I gave them tea, I gave them something to eat, and then they departed. And after they departed, when you learn to maintain your peace, I'm giving you a picture of the pastor was out of his church. और ऐसा होता है कि उसके बाद क्या होता है, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। वो जो पास्टर थे जो वहाँ पर आए थे, वो उस कलीसिया से बाहर हो गए। The pastor is out of the church. आज जो पास्टर है वो चर्च से बाहर थे। And I was thinking, am I supposed to be a pastor or not a pastor? और मैं अपने आप में सोच रहा था कि मुझे एक पास्टर बनना है या नहीं बनना है। And this is the first thing that you have to always remember, because Satan will use you in the midst of all the pressures for you to lose your peace. और आपको ये समझना जरूरी है कि शैतान जो है आपको इस्तेमाल करेगा, आपके ऊपर तमाम दबाव लाने की कोशिश करेगा जब आप किसी परेशानी में होते हो। If you maintain your peace, you have received your promise. अगर आपने अपनी शांति को बरकरार रखा, बनाए रखा, तो आपको आपका वादा जरूर पूरा करके दिया जाएगा। 1995, 1998, I came out from that Sindhi church. 1999, सन 1995 और सन 1998 के बीच में उस चर्च से निकल कर आया, और सन 1999 में at that one bedroom flat that we had rented to a lady that had come from Canada. तो ये जो यहाँ पर एक बेडरूम का ये फ्लैट था, तो वहाँ पर एक महिला आई थी जो कनाडा से, वो किराए पर वहाँ रहती थी। She was a pastor from Canada that wanted to establish a church in Mumbai. वो एक पास्टर थी जो कनाडा से आई थी, मुंबई में एक कलीसिया स्थापित करने को आई थी। One day when I had just come, because she had to give me the rent money, she said, Deepak, can I talk to you? और एक दिन जब मैं यहाँ पर आया था क्योंकि उन्हें मुझे पैसे देना थे किराए के, तो उन्होंने इनसे बात की और कहा कि दीपक मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। Said the Lord has spoken to me that you are the pastor of the church that we are going to build in the city. और उन्होंने ये कहा कि प्रभु ने मुझसे बात की है कि दीपक आप उस चर्च के पास्टर बनोगे जो हम इस शहर में, इस नगर में बनाने जा रहे हैं। And I was thinking, Lord, if this is from you, let it be established. और मैं ये सोच रहा था कि प्रभु अगर ये आपकी ओर से है तो सो हो जाए। There was such an honor from America, a church of Philadelphia, Reverend Ernest Small, who is no more today. और फिर ऐसा होता है कि इतना मुझे सम्मान मिला, फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक चर्च था और वहाँ के पास्टर थे अर्नेस्ट स्मॉल, जो आज हमारे बीच नहीं है। He came down to ordain me in the Carpupil Auditorium. वो यहाँ पर आए खास तौर से, और यहाँ पर हमारे खान में एक ऑडिटोरियम है प्यूपिल स्कूल का, बहुत बड़े जनसभा है, जनसभाएं होती है वहाँ पर आकर निर्धारित किया गया है। All the pastors of the church, including the two pastors that came to my house, और सारे के सारे पास्टर वहाँ पर थे, उनमें वो दो पास्टर भी शामिल थे जो इनके घर पर आए थे। they all were invited, including Pastor Joseph, who is the founder of the New Life. वो सारों को एक न्योता दिया गया था, उनमें हमारे पासवान जोसेफ भी शामिल है जो कि न्यू लाइफ के स्थापक हैं। And all came for one reason, because the actor Dharmendra was related to this lady. और ऐसा होता है कि सब लोग एक ही कारण आए, क्योंकि जो एक्टर हैं हमारे धर्मेंद्र, वो इस महिला जो थी हमारी पास्टर थी, उनके साथ उनका संबंध था, रिश्तेदारी थी। And the news spread in the entire city that actor Dharmendra had accepted the Lord. और पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक्टर धर्मेंद्र ने प्रभु को ग्रहण किया है। And every Tom, Dick and Harry were there in that ordination. और वहाँ पर हर कोई
शख्स जो था वो उस समय पर वहाँ पर मौजूद था। And Dharminder came to the platform और धर्मेंद्र भी मंच पर आए and he shared something about Jesus. और उन्होंने यीशु के बारे में कुछ बातें कही And everybody was thrilled, but it was God supernaturally did it in such a way that in the presence of everybody, I was ordained from America. ऐसा होता है कि सब लोग बड़े खुश हुए ये देखा कि धर्मेंद्र मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और इन सारे लोगों के बीचों बीच मुझे निर्धारित किया गया। And if you maintain, I have shared all this is only for one reason. ये बस मैं बता रहा हूँ केवल एक ही कारण से, If you maintain your peace, अगर आप अपनी शांति बनाए रखेंगे God will turn around everything to turn around and promote you. तो परमेश्वर हर एक चीज को पलट सकता है ताकि आपको उन्नति दे। What is the characteristic that is called in English? It is called meekness. और वो कौन सी ऐसी चीज है अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है मीकनेस यानी कि नम्रता। Meekness is a term that says it's strength under control. इसका मतलब अंग्रेजी में ये है कि आपका बल जो है आपके वश में है। The Bible says this is not a common message spoken in churches because people think it is outdated. अब ये जो है आमतौर से ये संदेश जो है कलीसियाओं में नहीं दिया जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि बहुत पुराना हो गया है। But Jesus said, if anybody gives you a slap on the one, let him give you another one. अब तो यीशु कहते हैं कि अगर आपको कोई एक गाल पे आपके चाटा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल दे दो ताकि वहाँ पर भी वो मारे। Because there is wisdom in that, and people of the world think that you are a loser when you do that. लेकिन इसके पीछे भी एक और ज्ञान की बात है, लेकिन लोग समझते हैं इसको लेकर के ये एक हारे हुए व्यक्ति की सोच है। But if you learn to do this one thing, okay, the blessings of the meek, you will be shocked. अब अगर आप ऐसा करना सीख जाएंगे तब आपको हैरानी होगी, आप चंबे में रह जाएंगे। जो एक नम्र आदमी होता है उसको क्या-क्या आशीषें मिलती हैं। In 2004, I'm just cutting to complete this testimony, and we'll go to the blessings of the meek. In 2004, I came to this one-bedroom flat with my dad, just to, and the keys. I was waiting for the keys to come. ऐसा था 2004 की बात है। मैं यहाँ पर ये जो मेरा वन बेडरूम का फ्लैट था जो पड़ोस जो पास वाला है, वहाँ पर मैं चाबियाँ पास में थी, उनके लिए मैं इंतजार कर रहा था। अपने डैड के साथ आया था। God doesn't only promote you with honor, He promotes you with everything. परमेश्वर न सिर्फ सम्मान के साथ आपको तरक्की ही नहीं देता, परंतु साथ ही साथ वो बहुत कुछ और भी देता है। Very quickly, I came just to knock at the door of this house, saying, "Who is my new neighbor?" Because this lady was selling the flat. तो ऐसा था कि मैं जल्दी से यहाँ पर आया दरवाजा खटखटाने के लिए कि हमारे नए पड़ोसी कौन है, क्योंकि हमने सुन रखा था कि यहाँ जो रहती थी महिला वो ये फ्लैट बेचने जा रही थी। In that one day, the whole transaction happened. और उस एक दिन में ये पूरा का पूरा सौदा हो गया। It doesn't happen. I know people who have waited for months for any transaction and it has been aborted. और मैं ये जानता हूँ कि महीनों तक लोग एक सौदे के इंतजार में रहते हैं और वो टल जाता है किसी न किसी तरह। And it is important for us to understand this message that you are hearing is not only a message; it is a life message. अब ऐसा है, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो संदेश आपको दिया जा रहा है, प्रवचन दिया जा रहा है, ये एक जीवन का प्रवचन है। Maintain Jehovah Shalom in all situations. हर एक परिस्थिति में आप यहोवा शलोम को अपने अंदर बसाए रखिए। Especially when your stimulus is going haywire. और खास तौर पे जब आपके एहसास जो है, आपके जो विचार हैं, वो बिल्कुल आपके वश से बाहर निकल रहे हैं। Your response has to be because the fruit of the Spirit is meekness. ऐसा है कि आपका जवाब इस प्रकार से होना चाहिए क्योंकि आत्मा का जो फल है वो है एक नम्रता। Galatians 5:23 says one of the fruits of the Spirit is meekness. और गलातियों 5:25 में लिखा है कि आत्मा का एक फल है और वो है नम्रता। So you can do it if you are not in the flesh. और आप ये कर सकते हैं अगर आप शरीर से काम नहीं करते। So you have a choice whether you are in the flesh, you want to do what your flesh says, or you want to do what the Spirit says. और आपके सामने एक चुनाव है, आप चाहे तो वो करें जो आपका शरीर चाहता है या वो करें जो आत्मा कहती है करने को। Now catch this, because when you do it in the Spirit, it is meekness and there is beauty that the Lord sees. अब ऐसा है, इसे पकड़ के रखिए आप लोग। अगर आप कोई चीज आत्मा में करते हैं
उसके अंदर एक नम्रता होती है और परमेश्वर उसके अंदर सुंदरता को देखता है। If you don't bring the beauty, the beast will come out. अगर आप उस सुंदरता को नहीं लाएंगे तो अंदर से वो क्या कहते हैं उसे शैतान निकल कर आएगा। That's why it's so important. The story of the beauty and the beast is inside of you. इसीलिए बहुत जरूरी है वो जो कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट, यानी कि वो सुंदर स्त्री थी, लड़की थी और उसके पीछे जो एक शैतान जैसा व्यक्ति पड़ा था। Whenever you follow Jesus and the way he does things, it is beauty. और जब भी आप वो kरोगे जैसा यीशु क्या करते थे तो वो सुंदरता कहलाती है। Very quickly, I'm going to close Matthew 11. Now, this is time to take scriptures. If you are writing it down, Matthew 11:29, Jesus says. और हम जल्दी से लिख लेते हैं क्योंकि ये समय है वचन ले लेने का। अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए मत्ती 11 का। When Jesus is saying in 28, "Come unto me," he's making an invitation. और यहाँ पर यीशु लोगों से कह रहे हैं 11:28 में मत्ती की पुस्तक, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Verse 28 first. Everybody is giving an invitation. If you are under any kind of board, any kind of pressure, come to me because I am the Prince of Peace. ऐसा होता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम में से कोई एक बोझ से लदा हुआ है, परेशान है, किसी तरह की तुम्हारे ऊपर आपत्ति है, तो मेरे पास आओ क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूँ। The most poorest person is the person who comes to Jesus Christ, get baptized, and doesn't get anything more than that. और ऐसा है कि सबसे जो गरीब और निर्धन व्यक्ति है वो है लाचार व्यक्ति जो यीशु के पास आता है, बपतिस्मा लेता है और कुछ नहीं प्राप्त करता। Because the reason of you coming to Jesus is not baptism, it's to receive what Christ as the inheritance that is in Him comes in you. और ऐसा है कि यीशु में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बपतिस्मा लेना, परंतु इसलिए आपको आना है ताकि यीशु मसीह जो मीरास आपको दे रहे हैं वो आपको ग्रहण करनी है। In the midst of stress, you can have rest. और वो सारी परेशानी के बीच में आपको आराम मिल सकता है। And I will give you not stress, I will give you rest. और वो कहता है मैं तुम पर बोझ नहीं डालूंगा परंतु तुम्हें विश्राम दूंगा। For the believer who doesn't know how to take rest from Jesus, he is the most poorest believer. वो विश्वासी जो यीशु मसीह का विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता वो सबसे बेचारा लाचार व्यक्ति है। And the way you can receive this rest is the next verse. और किस प्रकार से आप विश्राम प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बताएंगे अगले वचन में। When you are yoked, जब आप पर जुआ लगाया जाता है, you know when bullock it is yoked. दो बैलों को जब जोता जाता है साथ में, Okay, जुए में, always the weaker one is put with the stronger one. और एक कमजोर को उसके साथ खड़ा किया जाता है जो ज्यादा बलशाली होता है। So that the weight is not on the weak, the weight is on the strong. इसलिए कि जो बोझ होता है जुए का वो उसके ऊपर हो जो कमजोर उसके ऊपर ना हो बल्कि उस पर जिसके ज्यादा बल है। And the one that is walking, it looks as though the weak is walking. और फिर ऐसा लगता है जो बलशाली चल रहा है तो ऐसा लगता है कि जो कमजोर है वो चल रहा है। क्या चाल है? What a walk! But the one that the whole weight is coming on the strong one. और वो सारा वजन जो है वो मजबूत के ऊपर आ रहा है। And it is very important. Jesus is saying, "Take my yoke." और बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु कहते हैं कि मेरे जुए को उठाओ। Don't do things in your own strength. अपने बल पर कुछ करने की कोशिश मत करो। And this is the most missed yesterday in the meeting. Nobody remembered this word, "Learn of me." और कल की जो सभा थी उसमें किसी ने एक बात नहीं बस इस वचन को नहीं समझा कि मुझसे सीखो। Whenever you are walking, it is not for style. और जब आप कुछ कर रहे हो तो ये कोई किसी को अंदाज बताने के लिए नहीं है मैं believer हूँ. कि मैं विश्वासी हूँ। It is for you to learn. ये हमारे सीखने के वास्ते है। What is the strong one doing and how is he doing it? और जो बलशाली है वो किस तरह से कर रहा है और क्या कर रहा है वो हमें सीखना है। In a situation that is like this, what is the word saying to you? और ऐसी एक परिस्थिति में वचन आपसे क्या कह रहा है? And that is how you will be able to go. और इसी तरह से आप चल सकेंगे। So he maintained the peace in the midst of stress. तो उसने अब वो सारे के सारे दबाव के बीच में भी शांति बनाए रखी। For I am meek. और वो कहता है कि मैं नम्र। Not I am शक्तिशाली. ये नहीं कहता कि बड़ा ही बलवान हूँ, ताकतवर हूँ। He was the one that could call angels at that time, but he didn't do it. वो चाहते तो उस समय स्वर्गदूतों को बुला लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Sometimes in any situation we want all the Swargadut to come, you understand, just hit them up.
और ऐसा होता है कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि सारी की सारी सेना आ जाए स्वर्गदूतों की और सामने वाले की पिटाई करें। Jesus is saying, I'm not put you there for that. और यीशु ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए वहाँ पर खड़ा नहीं किया है। How the disciples said, you know, like how Elijah sent, you know, and in this, please send also the same, you know, they are not accepting you, Jesus. अब ऐसा होता है कि एक समय था जब यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो उनके चेलों ने कहा कि जिस प्रकार से एलिया ने आकाश से अग्नि को उतारा था, उस प्रकार से आप अग्नि को क्यों नहीं उतारते? Whenever you are meek and lowly, you will find rest in your souls. ऐसा है कि जब भी आप नम्र और मन के दीन होगे, तो आपकी आत्मा में आपको शांति महसूस होगी। Put there 3 John 2. If your soul is prospering, then you will prosper. तो यूहन्ना 3:2 में ये लिखा है कि अगर आपकी आत्मा जो है वो उन्नति कर रही, तो आपकी साथ ही साथ उन्नति प्राप्त होगी। If you are correct inside, your beauty is inside, the beauty will come out. अगर आपके अंदर वो सुंदरता है, तो वो निश्चित रूप से वो बाहर भी नजर आएगी। And see the blessings of the meek. और जो दीन लोग होते हैं, नम्र लोग होते हैं, उनकी आशीषों को जरा देखिए क्या है। Number 1, those who are into dieting. सबसे पहली बात, जो खाना कम खा रहे हैं, डाइटिंग पे है, Those who love dieting. जिनको कम खाना पसंद है। This is a promise given that if you are meek, you will eat and be satisfied. और यहाँ पर एक वादा दिया गया कि तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त रहोगे। जो भी खाओगे पेट भर के खाओ, जो भी खाओगे you will be हजम हो satisfied. जाएगा, जो भी खाओगे हजम हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। You getting it? That is, now write it down. That is Psalm 22 verse 26. भजन संहिता 22 से 26 हम देखते हैं। भजन संहिता, The meek shall overeat. No. The meek shall eat and be satisfied. जो भी खाओ, नम्र लोग भोजन करके तृप्त हो गया। you getting what I'm saying? You eat little, you're already satisfied. चाहे कम खाओ, फिर भी आप तृप्त रहोगे। The wicked, now take the opposite. What is the wicked? और उसका उल्टा क्या है? जो दुष्ट है उनके साथ क्या होगा? उल्टा उसको नहीं, जितना भी खाओ, जितना भी खाओ, कभी संतुष्टता नहीं आने वाली। you getting what I'm आप नहीं saying? जाओगे। So the problem is not to change your diet. तो इस समस्या का हल ये नहीं कि आप अपने खाना पीना बदल दें, Change yourself. अपने आप को बदलें। Your diet will change. आपकी डाइट खुद ब खुद आप जो खाते पीते वो बदल जाएगी। Number 1 is satisfaction. Number 2 is direction. सबसे पहली बात है संतुष्टता और दूसरा है मार्गदर्शन। Psalm 25 verse 9. It is given. Some people come to church. प्रभु भजन मेरे से संहिता 25:9 क्या बात करता है मालूम नहीं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, आप नम्र लोगों को अपना मार्ग The दिखाएगा। meek will he teach. If you are meek, you are willing to learn. अगर आप नम्र हैं तो आप सीखने के लिए तैयार होंगे। Okay? When there is the way, he will tell you, I am the way, the truth and the life. Only he is giving it to the meek. ऐसा है जब मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूँ, तो वो जो नम्र लोग हैं उनसे ये बात कर रहे हैं। The third one is promotion. और तीसरी बात है तरक्की, उन्नति। Psalm 147 verse 6. भजन संहिता 147:6। You want promotion? आपको तरक्की करनी है Make some calls. तो कुछ फोन कॉल्स कीजिए। Tell them some contacts you need. आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स की सख्त जरूरत है। There is only one contact that is necessary. The Lord lifts up the meek. यहोवा नम्र लोगों को संभालता है But he casts the wicked to the ground. और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। And the fourth one is beauty. और चौथी बात है सुंदरता। Psalm 149 verse 4. 149:4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। Do you know ladies that go to saloon? आप उन महिलाओं को जानते हो जो कि ब्यूटी सैलून में जाती हैं। There is somebody who takes care of it. Aisha? कुछ लोग उनको सुंदर बनाते हैं, जैसे हमारी आयशा है। God is saying, I will be the makeup person. वो कहता है कि मैं तेरा मेकअप करूंगा। If you are meek, I will be the one that will bring beauty in you. I will be. अगर तू नम्र है तो मैं तुझे सुंदर बनाऊंगा, तेरी शोभा बढ़ाऊंगा मैं।
Joy, the fifth one. पांचवी बात है Isaiah आनंद। 29 verse 19. यशाया 29 का 9। He will give you joy. 29 का 9 देखते हैं। The meek also shall increase their joy in the Lord. 29 का 19। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। If there is any pride, some people lose their joy because they have lost their meekness. ऐसा होता है अगर आपके अंदर घमंड है या अहंकार है तो बहुत से लोग अपनी शांति को खो देते हैं अगर उनमें नम्रता नहीं रहती। The moment you allow meekness to come under you, you will increase in joy. ऐसा होता है कि अगर आप प्रभु से कहेंगे कि आप मेरे अंदर आओ, मेरी नम्रता को बढ़ाओ, तो आपकी खुशी भी बढ़ जाएगी। The sixth is presence, Isaiah 57 verse 15. यशाया 47 का 15। Here it says, I am a God who doesn't only live on above, I am a God who comes to the one who is meek. Amen. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, उसके संग रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। Salvation is given only to the meek, Isaiah 61 verse 1. यशाया 61 का 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि वो उद्धार देता है, खेदित मन के लोगों को शांति मिलती है। And the last one, किसको जायदाद चाहिए? How many of you want inheritance? और कितने लोग जो है वो एक जायदाद चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं? सिर्फ एक फ्लैट दे दो ना। Here he is not saying only one flat. तो यहाँ पर केवल एक फ्लैट की बात ही नहीं कर रहा है। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. नम्र लोग जो है वो धन्य है, क्योंकि पृथ्वी उनकी होगी। That's Matthew 5:5. मत्ती 5:5 में ये लिखा है। And not only that is written in Matthew 5:5, but it is also written the same thing again with abundance of peace. You will not only get inheritance, but you will also get abundance of peace. सिर्फ इतना ही लिखा, लेकिन साथ ही साथ आपको भरपूर शांति भी मिलेगी। That's Psalm 37 verse 11. भजन संहिता 37 का 11 भी देखते हैं। So not only you have inheritance, you have the abundance of peace. तो ऐसा है कि न सिर्फ आपको मिरास मिलेगी, लेकिन साथ में भरपूर शांति भी। Now you have heard enough. आपने काफी सुना है। Now it's time to move out. अब समय है कि आप आगे बढ़ें। The world has not changed. संसार बदला नहीं अभी तक। In the world you will have trouble. संसार में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। If God is looking for troubleshooter, who is the troubleshooter? अगर परमेश्वर देख रहा है कि जो परेशानियों को दूर करेगा, तो वो कौन है? You are the troubleshooter. आप परेशानियों को दूर करने वाले। How do you troubleshoot? आप परेशानियों को दूर कैसे करोगे? By maintaining your peace. अपनी शांति बरकरार रखते। First and foremost, not only maintaining your peace, but if everything moves around you, you are thankful for even wrongfully blamed for what you have done right. ऐसा होता है कि न सिर्फ अपनी शांति बनाए रखने के बावजूद, अगर आपके अतराफ सब कुछ गड़बड़ चल रही है, आप अच्छा करते हो लेकिन आपको बुरा कहा जाता है, तब भी आप धन्यवाद देते रहोगे। And the trouble may not change, but very soon you will have the treasure. परेशानियां नहीं बदलेंगी, परंतु उसके बावजूद भी आपको आपका खजाना जरूर मिलेगा। You know, I love what Sister Heather brought on that in my attention. उस दिन बहन हैदर कोई बात लेके आई थी मेरे ध्यान में। Water boil at certain temperature. कि पानी जो है एक तापमान पर आकर उबलने लगता है। But when you put salt into it, लेकिन जब आप उसमें नमक डाल देते हो, you have to increase the temperature because the water doesn't boil at the same temperature, but the temperature when the salt is, it has to be higher. तो ऐसा है, एक बार नमक आप उसमें डालते हो तो पानी उस तापमान पर नहीं उबलता है, क्योंकि नमक की वजह से उस तापमान को बढ़ाना पड़ता है। Are you able to understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं आपसे? Water without temperature, without salt or normal is a lower temperature. ऐसा होता है कि बिना नमक का जो पानी है वो एक आम तापमान पर जो है वो उबलने लगता है। But if you put salt into it, you need a higher temperature for it to boil.
लेकिन अगर आप एक बार उसमें नमक डालोगे तो उसे उबलने में ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है। The human body is 70% water. और जो इंसान का शरीर है उसमें 70% पानी होता है। Okay? That's why Jesus says, "You are the salt of the earth." इसलिए यीशु ने कहा कि तुम इस पृथ्वी का नमक हो। That when everybody tapak jaye, you understand? Everybody gets boiled. जब Nothing can boil you. उबलने लगता है तब आप जो हो उबलोगे नहीं। Your temperature cannot go up because in the natural, the world will have temperature, but you will not carry the temperature. ऐसा हो गया पूरा संसार जो है वो खौलने लगेगा गुस्से के मारे, लेकिन आप जो हो नहीं खौलोगे गुस्से से। Because you have the salt. क्योंकि आपके अंदर वो नमक है। Not only you have the salt, you are the salt. आपके अंदर सिर्फ नमक है ही नहीं बल्कि आप खुद नमक हो। That is the beauty. What was not there in the Old Testament, you are in the New, having a better inheritance. अब ऐसा है कि जो पुराने नियम में नहीं था उससे कहीं सुंदर, कहीं ज्यादा अच्छी चीज हमें नए नियम में मिली है। Moses was called the meekest man. जो मूसा थे वो बड़े मन के दीन कहलाए जाते थे, नम्र कहलाए जाते थे। But he missed entering the promised land because he lost his peace. लेकिन वो वाचा की भूमि में नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने एक समय अपनी शांति को गंवा दिया था। It is a reminder to all of us. ये हमारे लिए याद दिलाने की बात है। It's not to do about not making one mistake. ये बात है कि गलती करने की नहीं। But I want you to, as we go to partake in communion, repent that from today onwards, what is natural for you will not be natural. ऐसा है कि आज जब हम प्रभु भोज भाग लेंगे तो आपको पश्चाताप करना है क्योंकि वो जो चीज हम में थी स्वाभाविक रूप से आज वो नहीं होनी चाहिए। Because from today onwards, you are a supernatural person having Jehovah Shalom in this altar. क्योंकि आज से आप एक अलौकिक व्यक्ति बनने वाले हो क्योंकि आपके अंदर यहोवा शालोम जो है वो निवास करेगा। You are not only repenting, God, I repent of anything that is in any way from the flesh in my life, but today I will be meek. ऐसा है कि अगर आज जब प्रभु भाग लेंगे तो आप प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार से मैं स्वाभाविक ढंग से काम करता आया हूँ आज मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे नम्र बनना है। All hands lifted up. सारे हाथ ऊंचे उठा ले। Repeat after me, Heavenly Father. मेरे पीछे पीछे कहीं स्वर्ग में रहने वाले पिता। I present this body मैं इस शरीर को प्रस्तुत करता हूँ as a living sacrifice, एक जीवता बलिदान जैसे, holy and acceptable in your sight. जो आपकी दृष्टि में पवित्र है और स्वीकरण करने के लायक है। As Gideon prepared an altar, जिस प्रकार गिदोन ने एक वेदी को तैयार किया था, my heart is the altar that I am surrendering to you. मेरा हृदय वो एक वेदी है जो मैं आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ। Gideon allowed Jehovah Shalom to reign and move from beauty to ashes, from ashes to beauty. गिदोन ने यहोवा शालोम को अपने अंदर काम करने को दिया, इसलिए वो राख और टाट से उठकर सुंदरता में प्रवेश कर पाया, शोभायान हो पाया। शोभायान हो पाया। As I eat this bread, जैसे मैं ये रोटी में भाग लूंगा, I will carry your beauty. मैं तेरी सुंदरता को अपने साथ ले चलूंगा। By having the peace always at all times. ताकि ये शांति हमेशा और सदा के लिए मेरे अंदर बनी रहे। I repent for anything that is of the past. अतीत में जो भी हुआ है उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। Today I learn from Jesus. आज मैंने यीशु से सीखा है In everything to give thanks. हर बात में धन्यवाद देने को And bring the beauty of the Lord in me. ताकि प्रभु की शोभा मैं अपने अंदर ले आऊं। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन।